Good morning, dear students. In last lecture, we have explained a very important and hard concept. That the question was that calculate the charge of electron. It's a very tough question. We know that so many students give me a best reply that I can understand in inbox of my YouTube channel, and I am very happy to hear that all the students understand my concept. So this is the best concept of E by M. This was the best concept of E by M. But now we know that if atom is divisible, then it has three types of particles: electron, proton and neutron. After the discovery of electron, now we will understand the discovery of proton. How can we understand the discovery of proton? Here, this is the experiment. Just see, what is this in typical experiment? Just see, we will take glass tube, hard glass tube. First we will take hard glass tube, जैसे हमने कैथोड रेस के एक्सपेरिमेंट में किया था, उसी तरह से हम यहाँ पर हार्ड ग्लास ट्यूब ले रहे हैं। उसमें यहाँ पर प्रेशर हम वैक्यूम पंप के द्वारा लो करेंगे, तो यहाँ पर लो प्रेशर किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा अंदर यहाँ पर प्रेशर काफी लो है। यहाँ पर दो प्लेट्स रखी हुई है, एक है एनोड एंड द सेकंड प्लेट इज कैथोड। बट देखिए कैथोड में यहाँ पर टीनी होल किए हुए, देयर आर सो मेनी टाइनी होल्स इन कैथोड। सो इन अ हार्ड ग्लास ट्यूब we will take two important plates. Number one, that is anode, and number two, that is cathode. But in cathode ray tube, in cathode plate, it has too many small holes are there. Okay, so this is the plate of cathode in which there are tiny holes are present. Okay, now we will connect both the plates with this wire and high voltage power. So electricity will pass to the both the plates, and behind the cathode we will take fluorescent screen which is made up of zinc sulfide. Behind the screen, behind the cathode plate, we will take fluorescent screen, and the fluorescent screen is made up of zinc sulfide, ZnS. Okay, so this is ZnS यहाँ पर हमने लिया हुआ है। अभी हमारा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो रहा है। अभी हम इस पर हाई वोल्टेज का पावर इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। जैसे ही हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास होता है, यहाँ पर से रेस निकलना शुरू होता है। अभी रेस यहाँ पर एनोड में से निकल रहे हैं, लास्ट एक्सपेरिमेंट में रेस कैथोड में से निकल रहे हैं। यहाँ पर कैथोड की जो प्लेट है वो हॉल, टाइनी हॉल यहाँ पर है, तो एनोड में से रेस यहाँ पर निकलते हैं। यहाँ पर कैथोड में से पास हो रहे हैं, और यहाँ पर फ्लोरोसेंट स्क्रीन रखी हुई है ZnS, वहां पर स्पॉटिंग हो रहा है। That will be a spots on zinc sulfide fluorescent screen. That means this rays having power to spotting this zinc sulfide screen. तो यहाँ पर से वो रेस निकल रहे हैं। वो रेस एनोड में से निकल रहे हैं, इसलिए उस रेस को एनोड रेस और कैनाल रेस के नाम से जाना जाता है। So these are the canal rays, which these rays are obtained from anode. This experiment was done by Goldstein in 1886. देखिए, तो जो कैथोड का एक्सपेरिमेंट हमने किया हुआ था, वैसे ही यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ है। अभी हम इस एक्सपेरिमेंट तो हमने देखा, पर इस एक्सपेरिमेंट के तौर पर हम इसमें से क्या हम जानेंगे, which are the important characteristics of
canal rays, of anode rays. So the first important point of this anode rays is here, that just see this anode rays having positive charge. How can we know it has a positive charge? Just see, we are putting here negative charged plate. ये हमने चार्ज प्लेट रखी है, बट उसका चार्ज कौन सा है? तो ये चार्ज नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज प्लेट हमने यहाँ पर रख दी है। अब देखिए क्या होता है, इसका चार्ज नेगेटिव है, ठीक है। अगर ये एनोड के जो पार्टिकल्स यहाँ पर से मोशन कर रहे हैं, देखिए धीरे धीरे क्या होता है कि वो सभी पार्टिकल्स यहाँ ऊपर की तरफ फोर्सफुली यहाँ आ जाते हैं। ये यहाँ आ जाते हैं, कहाँ पर आ गए? यहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज है। तो हम सब जानते हैं कि नेगेटिव का अट्रैक्शन पॉजिटिव की तरफ होता है। तो यहाँ पर से क्या हुआ कि ये नेगेटिव चार्ज है, अगर ये सभी पार्टिकल्स यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, उसका मतलब है ये पार्टिकल्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज। इट इज प्रूव दैट यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट में थोड़ा मूव करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि कैनल रेज हैविंग पॉजिटिव चार्ज। इज इट क्लियर? इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये हमें पहली मैटर यहाँ पर देखने को मिलती है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। ओके, अभी हम सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर समझते हैं। देखिए अभी मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने एक समझिए एक मैग्नेट रखता हूँ। यहाँ पर मैं क्या रखा? मैंने मैग्नेट रखा। एनोड में से रेस निकलना शुरू हुए और यहाँ पर मुझे शेडो देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? ये मैग्नेट का शेडो। तो देखिए सन रेस अर्थ पर आते हैं तो हमारी शेडो हमें देखने को मिलती है ना। अगर हम दोपहर को मॉर्निंग में हम देखते हैं कि हमारी शेडो हमें देखने को मिलती है। कोई भी जो हार्ड यहाँ पर कोई भी हार्ड यहाँ पर चीज मिलती है हमें देखने को, तो उनका शेडो होता है, क्योंकि उस पर सन रेज आते हैं और सन रेज जो निकलते हैं ना वो पार्टिकल फॉर्म में होते हैं। जो पार्टिकल फॉर्म में होते हैं उसी की शेडो मिलती है और वो उसका रीजन जो लाइट है वो पार्टिकल फॉर्म में है। ड्यू टू इट्स पार्टिकल फॉर्म शेडो विल क्रिएट। तो कैथोड में से जो शेडो हमें देखने को मिल रहा है उसका रीजन यही है। ये शेडो का रीजन हमें बिल्कुल यही देखने को मिलता है। तो अभी देखिए सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें क्या मिला? तो इसका जो नेचर है इट हैज पार्टिकल नेचर। इट हैज पार्टिकल नेचर। शेडो की वजह से हमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर देखने को मिलती है कि ये यहाँ पर हो रहा है। देखिए अगर हम पूरे एक नाइट में क्लोज रूम में आ जाते हैं, सभी लाइट हम ऑफ कर देते हैं, तो हमारा शेडो देखने को मिलेगा? आप आंसर ऐसा ही दे देंगे कि शेडो नहीं ही मिलेगा, क्योंकि लाइट की प्रेजेंट ही नहीं है। सो इफ द लाइट इज प्रेजेंट एंड इफ इट इज इन अ पार्टिकल फॉर्म देन शेडो विल क्रिएट। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट मैटर हमें यहाँ पर देखने को मिली कि इसका नेचर पार्टिकल नेचर है। देखिए अभी मैं तीसरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ मैटर। अभी क्या कर रहा हूँ देखिए, अभी यहाँ पर मैं एक रोलिंग व्हील रख रहा हूँ। रोलिंग व्हील ऐसा व्हील है छोटा सा, घूम सके ऐसा छोटा सा व्हील, रोलिंग व्हील मैंने रख दिया। थोड़ा हार्ड पेपर का बना हुआ व्हील मैंने यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। अगर ये व्हील मैं यहाँ पर रखता हूँ, फिर से एनोड में से रेस निकलना शुरू होते हैं, तो ये जो व्हील है ना वो घूमना शुरू कर देता है। अगर ये व्हील घूमना शुरू कर देता है, so that will be another important point that this canal rays having motion also। तो उसमें मोशन भी है, वो पॉजिटिव चार्ज भी है, it has a particle nature, it has a motion also। and unlike, just see, unlike cathode rays, unlike यहाँ पर लिख रहा हूँ, unlike cathode rays, it is depends
कैथोड रेज से ऑपोजिट प्रॉपर्टी है। कैथोड रेज है वो नेचर के गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं रहती, पर ये रखता है। नेचर ऑफ गैस जैसे ही यहाँ पर चेंज होता है अंदर, मालूम कीजिए यहाँ पर हमने वैक्यूम पंप से वैक्यूम किया है, वो अगर थोड़ा भी कम होता है तो उसका मोशन में, उसके चार्ज में, उसकी पार्टिकल नेचर में चेंज हो सकता है। सो अनलाइक कैथोड रेज इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ दिस पार्टिकल्स is found to depends on the gas। वो भी यही हो गया कि E/m की जो वैल्यू यहाँ पर मिलेगी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर चार्ज ऑफ प्रोटॉन रहेगा, यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन रहेगा, वो भी नेचर ऑफ गैस पर ही डिपेंड करता है। सो अब देखिए कितनी कितनी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हम यहाँ पर बोल सकते हैं, दैट इन प्रेजेंस ऑफ magnetic and electrical field, behavior of anode rays is opposite to cathode rays। So this is the important characteristics of canal rays, of anode rays। Is it clear to you? So ये आज के जो हमारे लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं वो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कैनाल रेस के बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन हम समझ रहे हैं। हमने देखा कि एक हार्ड ट्यूब यहाँ पर थी, दो प्लेट्स हमने रखी हुई थी, कैथोड में ज्यादातर हॉल यहाँ पर किए हुए थे, एनोड में से रेस निकल रही थी और कैथोड में से पास होकर फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर स्पॉटिंग हुआ ताकि हमें पता चला कि एनोड में से रेस निकल रहे हैं। उसमें क्या क्या हमने एक्सपेरिमेंट किए, हमने ऊपर चार्ज प्लेट रखी, नेगेटिव चार्ज प्लेट, तो जो सभी पार्टिकल्स थे रेस वो सभी ऊपर की तरफ मूवमेंट करने लगे। तो हमें पता चला कि ऊपर तो नेगेटिव है, नेगेटिव पर ही पॉजिटिव का अट्रैक्शन होता है, तो इसका चार्ज पॉजिटिव रहेगा, वो हमें मालूम पड़ा। सो एनोड रेज हैविंग पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड पॉइंट हमें क्या देखने को मिला, हमने जो मैग्नेट वहां पर रखा तो उसकी शेडो हमें देखने को मिली, वो उसका पार्टिकल नेचर दिखाता है। फिर हमने रोलिंग व्हील वहां पर रखा तो वो घूमने लगा, जो उसके मोशन के बारे में बताता है। और कैथोड रेज से अनलाइक करते हुए उसका जो नेचर है वो गैस पर डिपेंड करता है। E/m जैसे हमने चार्ज टू रेशियो, मास रेशियो किया था, वो भी उस पर डिपेंड करता है। और कैथोड से ऑपोजिट बिहेवियर है, क्योंकि कैथोड नेगेटिव में से ऑब्टेन हुआ था और ये पॉजिटिव में से निकल रहा है। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस पॉइंट of discovery of proton, which was discovered, proton was discovered by Goldstein in 1886. So this is our important experiment belongs to the canal rays। समझ में आ रहा है आपको? फिर से मैं आपको बोल देता हूँ कि बोर्ड पर मैंने जो यहाँ पर किया हुआ है प्रेजेंटेशन, ये प्रेजेंटेशन आपको कॉन्सेप्ट बुक में लिखना है, और मैं जो डिस्क्रिप्टिव इमेज आप सबको भेज रहा हूँ वो इमेज आप सबको होमवर्क में लिखना है और एक बार फेयर बुक में भी लिखना है। दोनों की फोटो लेके हमें सीधे ही PDF हमारी फैकल्टीज को कर देनी है, ठीक है? ये हमारा होमवर्क हो गया, ये हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो गई। तो आज के लिए हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में हमने पढ़ा है, अच्छी तरीके से आप सबको ये इंफॉर्मेशन पढ़ लेनी है, ठीक है? तो आज के लिए इतनी ही इंफॉर्मेशन हम रखने वाले हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर।